Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Sunday service of Evanston Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी संडे सर्विस जो एवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है, आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to 2 Corinthians chapter 3, verse 6. और आज के लिए हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन। He made us able to be servants of a new agreement from himself to his people. This new agreement is not a written law, but it is of the Spirit. The written law brings death, but the Spirit gives life. जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। Old Testament is based on obedience to the written law of God. और जो पुराना नियम जो है वो परमेश्वर की जो लिखित व्यवस्था के पालन पर आधारित है। The New Testament is based on the blood of Jesus Christ and sealed by the Holy Spirit. और जो नया नियम है वो यीशु मसीह के लहू और पवित्र आत्मा द्वारा मोहर बंद है। The law reveals all people as lawbreakers. और व्यवस्था कहती है कि जो सभी लोग जो है उसने व्यवस्था को उल्लंघन करने वाले हैं। The law or letter kills in that the penalty for breaking God's law is eternal death. और जो व्यवस्था होती है वो मार डालती है और परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने का जो दंड है वो नरक में अनंत जीवन। The written law, the letter was chiseled in stone by the finger of God, is unchanging and standard by which all are judged. और जो परमेश्वर का की व्यवस्था का जो उल्लंघन करता है उसका नरक में जो अनंत मृत्यु है, लेकिन जो लिखित व्यवस्था पत्थर पर खुदी हुई है वो परमेश्वर की उंगलियों के द्वारा लिखी गई है और वो बदलती नहीं। The law can only condemn us as sinners and the sentence is death. और व्यवस्था हमें केवल पापी के रूप में दोषी ठहरा सकती है और दंड मृत्यु है। The law cannot give us righteousness or eternal life in heaven. और व्यवस्था हमें धार्मिक या स्वर्ग में अनंत जीवन नहीं दे सकती। God saves us from death and grants us eternal life when we are born again through the power of the Holy Spirit. और जब हम पवित्र आत्मा की शक्ति से फिर से जन्म लेते हैं तो परमेश्वर हमें मृत्यु से बचाता है। The Spirit is the cause of new birth. आत्मा ही जो है वो नए जीवन का कारण है। The Spirit who lives in believers seals and sanctifies them. और आत्मा जो विश्वासियों में वास करता है उन्हें मोहर बंद और पवित्र करता है। Jesus came to give us abundant life. और यीशु आया इस जगत में हमें भरपूरी से जीवन देने के लिए। It's marked by the fruit of the Spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. और ये जो है वो पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा पहचाना जाता है, जो है प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, भलाई, विश्वास योग्यता, कोमलता और आत्म संयम। The old law could not produce any of the fruits. और जो पुरानी व्यवस्था जो थी वो इनमें से कोई भी एक फल को प्रकट नहीं करती थी। The Holy Spirit enables us to be transformed into the glorious image of Jesus Christ. और जो पवित्र आत्मा है वो हमें परमेश्वर के अपने पुत्र की महिमामय छवि में रूपांतरित होने में सक्षम बनाती है। Now we have been released by the Spirit from the law, so that we serve in the new way of the Spirit. और अब जो है कि हमें व्यवस्था से मुक्ति मिल गई है ताकि हम आत्मा के नए मार्ग में सेवा कर सकें। The Spirit gives life which the letters on stone cannot do. और जो आत्मा जो है वो जीवन देता है, जो पत्थर पर लिखी हुई जो अक्षर है वो नहीं दे सकता। The Spirit takes away the blindness of the heart, so that the eyes of the heart can see the glory of Christ. और आत्मा जो वो होती है वो हृदय के जो अंधेपन होता है उसको दूर कर देती है ताकि हृदय की आंखें मसीह की महिमा को देख सके। Jeremiah chapter 31 verses 31 to 33.
और यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय उसका 31 से 33 वचन। Look, the time is coming, says the Lord, when I will make a new agreement with the people of Israel and the people of Judah. It will not be like the agreement I made with their ancestors when I took them by the hand to bring them out of Egypt. I was a husband to them, but they broke that agreement, says the Lord. This is the agreement I will make with the people of Israel at that time, says the Lord. I will put my teachings in their minds and write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पिता था तो अभी उन्होंने मेरी यह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। God puts His divine life into our spirit, from where it spreads into our inward parts, such as our mind, emotion, and will. और परमेश्वर अपने दिव्य जीवन को हमारी आत्मा में डालते हैं, जहां से यह हमारे आंतरिक भागों जैसे हमारे मन, भावनाओं और इच्छा शक्ति में फैलती है। The law of life regulates us from within, whereas the law of letters regulates us from without, according to the dead letters. और जीवन की जो व्यवस्था होती है वो हमें भीतर से नियंत्रण करती है, जबकि जो अक्षर की जो व्यवस्था होती है वो हमें बाहर से नियंत्रण करती है। In the New Testament, 4 blessings are promised. और जो नए नियम में जो हमें 4 आशीषों का वादा किया गया, imparting divine life into us. हमारे भीतर में दिव्य जीवन का संचार, Privilege of having God as our God and of being His people. और परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानना और उनके लोग बनने का विषय अधिकार, Enabling us to know Him in the inward way of life. और उन्हें जीवन के आंतरिक मार्ग में जानने में अपने आप को सक्षम होना। Jesus established a better covenant night before He died on the cross. और यीशु के क्रूस पर मरने से एक रात पहले एक बेहतर एक वाचा स्थापित की गई। He had a Passover meal with His disciples. और उन्होंने अपने चेलों के साथ एक फसह का भोजन किया। He held up a cup of wine and declared, "This is the new covenant in my blood." और उन्होंने एक प्याले में दाखरस लेकर कहा, यह मेरे लहू में एक नई वाचा है। The new covenant had great transforming power. और वो जो नई वाचा है उसमें बहुत ही महान रूपांतरण, हमें परिवर्तन करने की ताकत है। Old Testament was based on your ability to keep the law. और पुराना जो नियम था वो अपनी व्यवस्था को बनाए रखने में की क्षमता में आधारित था। New Testament is based on what Jesus did for you on the cross. और नया नियम जो है वो इस पर आधारित है कि यीशु ने आपके लिए क्रूस पर क्या किया। Old Testament gave no power to keep the covenant. और जो पुराना नियम जो है वो वाचा को बनाए रखने के लिए कोई शक्ति नहीं देता। Hebrews chapter 8 verse 10 says, I will put my laws into their mind and write them on their hearts. और इब्रानियों 8:10 में ऐसा लिखा है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा। By the power of the Holy Spirit, we can obey His commandments. और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम जो है उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। We have a new relationship with God because of new covenant. और हमारे पास नई वाचा के कारण परमेश्वर के साथ एक नया संबंध है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।